invite Ms. Shima Kirmani from Tehreek Niswan. Ms. Shima is a renowned classical dancer trained in Bharatanatyam, theatre director, and the founder of Tehreek Niswan, who has dedicated her life to promoting performing arts and advocating for women's rights, peace, and cultural expression across Pakistan. Ma'am, we warmly welcome you to the stage. तो आप सबको बहुत बहुत सलाम और हक मौजूद। शुरू में इस बात से करूंगी कि I am privileged and feel very honored to be here, and I feel very honored because there are some very respectable guests here this morning. कानपुर साहब, मेरे लिए बहुत इज्जत का मौका है कि आप आए हैं हमें सुनने के लिए। आप में से जो लोग कानपुर साहब को नहीं जानते हैं, you must look him up. He is, it is very difficult to describe him in words, but his spirit, his energy, ये एक educationist भी रहे हैं, अभी भी हैं. He's a, I would call him my guru, and I feel that he's somebody that we all look up to very much. He's also an artist, क्योंकि अगर आप उनकी फेसबुक पे देखेंगे तो इतनी गजब की फोटोग्राफ्स ये उतारते हैं कि every frame is a piece of art. So thank you, sir, for being here this morning. I'm really honored. आप सब जानते हैं कि मैं सबसे पहले तो मैं एक औरत हूँ और फिर मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट क्या है और आर्ट क्या, हम यही बात करने आए। मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई माशरे में आर्ट और आर्टिस्ट ना हो तो वो एक डेड माशरा। आप पूछेंगे क्यों? Why? What? Like the topic, why and what is art? Why is art important? हमें बचपन से ये कहा जाता है कि ऐसा प्रोफेशन पकड़ो जिससे पैसे बने, राइट? ऐसा प्रोफेशन करो जिसमें आगे बढ़ो और कमाओगे अच्छे। आर्ट में कमाई नहीं है अच्छी, so don't be an artist. This is what we are told right from the start, right? But I submit to you that each one of you is an artist. हर इंसान artist है. If we are not artists, we cannot create a civilized society. So art is inherently in each one of us. Do you feel that? Yes? Yes. And what does it mean to you? It means that we as you, एक तो क्या difference है जानवरों में और इंसानों में? जानवर आर्ट नहीं क्रिएट कर सकते, इंसान ही है जो आर्ट क्रिएट करते हैं. Isn't that so? Yeah? जानवर themselves may be great pieces of art. I mean, look at the beauty of animals. Some of them are so exquisitely beautiful. But they're not creating art. Human beings are creating art. Because we are conscious people. Because we have brains which are full of creative potential, of energy. It is this energy that creates art. और ये energy हमारे अंदर है. And art is not just कि हम कोई performance कर रहे हैं. Art goes much beyond, because what an artist wants to do is to find the truth within and the truth outside. It may sound a little abstract, मगर अगर इसके बारे में आप सोचें कि सच क्या, हमारे अंदर क्या सच है. मैं एक छोटा सा आपको शेर सुनाती हूँ फहमीदा रियाज का. सबने फहमीदा रियाज का तो नाम सुना होगा ना. The greatest Urdu poet of the subcontinent,
जो मैं समझती हूँ उनको, मतलब दिस इज माय ओपिनियन। एंड जी शहर में ही नहीं, शहर में कहा। और वो आपके शहर की थी, इसी शहर में उन्होंने पढ़ा था। She was educated in Hyderabad. And she says, गौर से सुनिएगा, she says, तारीख लिखी जो मर्दों ने है कितने अधूरे बाब इसमें। Who has created history? Think of the word history. Here's HIS, STORY, story. Here's story. मर्दों की ही कहानी है, लिखी मर्दों ने ही है, हम औरतें कहाँ हैं? Where do we figure in that? We have to find that. मैं एक औरत हूँ, लेकिन मैं उससे पहले, औरत होने से पहले मैं एक इंसान। And that is what Femida said, and that is her message in her poetry. So, मैं आपसे ये बात करने आई हूँ कि what I believe art is, and I believe that art is not just dance and music and theatre. It is dance and music and theatre, but it is not only that. It is much more than that. And what kind of art am I interested in producing? And why am I producing art? यही सवाल होते हैं ना, और आप लोगों के भी जहन में यही सवाल है कि हम क्यों, और मैं चाहती हूँ कि ये सवाल आप लोग उठाएं कि क्यों हम आर्ट पढ़ें, क्यों हम आर्ट सीखें। One of the greatest scientists of the world, Einstein, what does he say about art? Let me quote Einstein. And he says that logic or science will get you from A to B, and it will teach you how to get there fast and how to get there well. But it is imagination that can make you fly beyond what the aeroplane can take. Right? So, आर्ट जो है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे इमेजिनेशन को खोलता है। That is for me the most important aspect of art. It opens up our minds, our imaginations. And what do we imagine? We imagine to create a society where there is justice, where there is equality, where there is humanity, and where there is non-starvation. That is what art teaches me and what it has taught me. And that is what the kind of art I practice. मुझे टाइम का जरा सा वो बता दीजिएगा. I have half an hour, you said. So just raise your hand when there's 5 minutes left, because the last 5 minutes I'd like to do something. So हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हम सब के अंदर आर्ट है, मगर हम सब आर्टिस्ट नहीं बने, एंड जरूरी नहीं कि हम सब आर्टिस्ट बने इन द सेंस ऑफ द वर्ड दैट वी नो एज आर्टिस्ट, बट वी आर क्रिएटिंग आर्ट ऑल द टाइम बिकॉज वी आर कॉन्शियस ह्यूमंस हु आर टॉकिंग एंड interacting with each other, trying to develop the kind of relationships that are meaningful for us as individuals, as well as relationships that are important for the society that we are living in. आप क्या चाहते हैं कि किस किस्म की सोसाइटी हो? कोई भी? Any जवाब? Yes? Fair and just. So, I think that is what my purpose in life as an artist is, and I think like Bertolt Brecht, एक और German playwright थे, तो उन्होंने कहा कि it can help, art helps the artist as well as the audience to
open up our imagination and make us so strong that we are provoked to think. And once we think, once we start thinking, we start searching for answers and directions. When we're looking for answers and directions, you find what direction you want to take. So, आर्ट का पर्पस ये है, जब मैं थिएटर करती हूँ या जब मैं डांस करती हूँ या जब भी मैं आके स्टेज के पर खड़ी होंगी, so when I am standing on the stage, the first reaction that you have is, oh, here is a woman and she's standing with her spine straight. What does it mean? And she's moving. So सबसे पहला ख्याल क्या आता है? सबको सुनाई दे रहा है ना? Yeah. This is the training of an artist to reach the last person in the row. So when a woman is standing straight on the stage with her spine upright, her shoulders back, what is she saying? She's saying, I am free, I am confident, I am proud of my body, I'm not ashamed of my body. वरना हमको क्या सिखाया जाता है बचपन से? ये ना, ये. This is how we are taught as girls, as young girls, to be ashamed of our bodies. But the art that I'm talking about is that it teaches you to have pride in your body, in yourself, and have self-respect and self-esteem. When my dance class, as you all know that I am a dancer, I teach dancing and I teach theatre. जब लड़कियां आती हैं तो सबसे पहली चीज मुझे उनको क्या सिखानी पड़ती है? Open yourself. Don't be scared of your bodies. Don't be frightened कि वो point out करके बोलेगा कि देखो ये लड़की कैसे चल रही है. In fact, the minute you start walking with your back straight, the men and the boys on the road who are about to tease you are scared to tease you as much as when they will tease you if you walk like that and if you walk like that. Yeah, this is my data collection from all the students that I've had. Okay. चादर पहनो, बुर्का पहनो, जो भी करो, जितना भी कवर करो, उन बच्चियों पे ज़्यादा टीजिंग आती है बनिस्बत उस लड़की के जो यूं खड़ी है. She doesn't have to be exposing her body. I'm not exposing my body, but I'm standing with confidence in my body. So ये चीज I think we have to understand, and this comes also from an understanding of art. Right? So art is about relationships. Art is about telling the truth. Art is about living to your fullest potential. Art is about equal relationships. And it is not only entertainment, it is entertainment as well. आप जरूर enjoy करें कोई परफॉर्मेंस को, आप जरूर हंसे किसी परफॉर्मेंस पे, आप जरूर रोएं किसी परफॉर्मेंस पे, but that is the magic of art. कि what does it do to you? It moves you emotionally. मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी और सिनेमा हॉल में हम लोग जाते थे फिल्म देखने के लिए, तो कोई ऐसी फिल्म जो बहुत एक्सट्रीम ट्रेजेडी है कि सौतेली माँ आ गई हो अपने दूसरे सौतेले बच्चे पे जुल्म करे, हम रो रो के बुरा हाल होता था. राइट? बट वो इमेजेस, वो कहानियां हमको अब तक याद है. जो कहानियां मैंने अपनी नानी दादी से सुनी थी वो मुझको आज तक याद है. So what is it? It is the power of storytelling. And that storytelling is what is the narrations, the narratives that build our folk tales, that build our legends, that build what they call history, which we want to change and call her story as well.
So it must not only be his story, it must be our story also. I would also like to leave 5 minutes for question and answer if people are interested in that. तो जब हम ने काम शुरू किया तो because I think if one takes it from a personal experience, it has more of an impact. तो मैंने अपना जब जिंदगी एक शौरी तौर पे शुरू की तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी. हमारे यहाँ एक घर में माहौल था किताबों का, and where do ideas come from? They come from all the past great people जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, चाहे वो इस धरती के हों, चाहे वो उस धरती के हों या उस धरती के हों. The great minds, they are the people who their ideas that one reads and accumulates knowledge from and then lives one's own experience. तो हमने बहुत किताबें पढ़ी और हमने अपनी एक सोच जो बनाई वो यही सोच थी कि हमें प्यार, मोहब्बत, इश्क वाला समाज चाहिए. ये सोच थी हमारी. We used to sing, make love not war उस जमाने में, and this is the early 1970s. अब उसका क्या मतलब? उसका यही मतलब था ना जो आपने कहा कि create a society which is full of love and not full of hatred, where people are not divided and made to hate each other on the basis of sex, religion, caste, class, and class. Huh? Anything else? Gender. Huh? Gender, yes, sex, yeah, gender, absolutely. So, language. And language, ethnic, linguistic, no differences. That's the kind of society that we dream of. And what does art do? Art doesn't only allow you to dream. Art makes those dreams come true. Whether it is through your painting, or through your poetry, or through your theatre, or through your music, for you it comes true. So if it comes true for you, then for your people who are watching you, listening to you, for them also it becomes a reality. तो मैंने पेंटिंग से शुरू किया था. मैंने सोचा मैं पेंटर बनना चाहती हूँ. बहुत पेंटर्स के बारे में पढ़ा था, द रोमांस ऑफ पेंटिंग वगैरह. फिर मैंने पेंटिंग पढ़ी, उसके बाद मुझे लगा, और मैंने जो कहते हैं वन पर्सन शोज भी किए, फिर मुझे लगा कि यार ये पेंटिंग्स देखने कौन आ रहा है? Who am I talking to? You see, for an artist, who is one showing one's art to, or who is one connecting one's art with? तो मुझे लगा कि ये जो आर्ट गैलरीज में लोग आ रहे हैं, maybe I'm not so interested in those people. If my art could be displayed on the roads, in the villages, or in parks, then maybe I would be interested in continuing that art. But I felt कि ये तो बहुत ही एक वो छोटी सी जगह पे चंद लोग आके देख रहे हैं, और कौन लोग होते हैं जो आर्ट गैलरीज में जाते हैं ये भी हम जानते ही हैं. So I said कि नहीं, इसको तो छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं. बचपन से हमने डांस, म्यूजिक, थिएटर, ये सब चीजें सीखी हुई थी, क्योंकि आई एम ऑफ द जनरेशन where our parents taught us to learn, and in fact sent us to learn all these things because they felt this was part of education. हमारे ज़माने में स्कूलों में डांस भी सिखाया जाता था, स्कूलों में गाना मौसीकी भी होती थी, स्कूलों में पेंटिंग्स भी होती थी, पेंटिंग भी सिखाई जाती थी. तो ये सब हमने सीखा था. So I decided कि नहीं, I will do something different. And what is that? Why not an art through which I can communicate with the ordinary people, talk to people on the road? So that is what? That is community theatre. That is theatre which is for the people, about the people. तो हमने ये शुरू किया, and we called it community theatre. क्या हम लोग बस्तियों में, सड़कों पे, स्कूलों में, कंपाउंड्स में, हॉस्पिटल के पार्क्स में,
जहाँ भी हमको मैदान छोटी सी जगह मिल जाती थी, हम अपने आप को मोबाइल बना के, मतलब हम ट्रैवल करके जाते थे to those places and to those people who could not come to the city auditoriums to see. You know, हम रहते हैं कराची शहर में, it's a huge city, वहाँ पे लोगों का ट्रैवल भी बहुत मुश्किल है। As we all know, पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल क्या है, तो कौन आता है ऑडिटोरियम में प्ले देखने? तो हमने कहा हम ही जाते हैं। तो हमने इस तरह से शुरू किया। पहली दफा जब मैंने ये काम किया एक पार्क में, और एक वहाँ पे उस जमाने में, ये लेट 1970s की बात है, कराची में एक औरतों का मीना बाजार खुला था, एक मार्केट जो कि सिर्फ औरतों की। तो हमने कहा चलो यहाँ जाके करते हैं। वहां पे जा करके हमने एक नाटक पेश किया, और उससे पहले we had been working on seminars, conferences, workshops कि let's talk about women's rights, let's research and write papers on women's issues, why is this पर्दा and why is this star दीवारी वगैरह वगैरह। मगर जब वो हमने नाटक किया, so everyone sat there silent। औरतें जिनके गोदों में बच्चे थे, जिनके पास छोटे बच्चे थे, जिनके पास, खामोशी से उन्होंने बैठ के देखा। And some of them had tears in their eyes. And at the end of it, they said, आपको कैसे पता चला ये हमारी कहानी? आपने कैसे सुना दी? आपने तो मेरी बहन की कहानी सुनाई, आपने तो मेरी अम्मा की कहानी सुनाई। So these were stories of ordinary women. And when these ordinary women who were watching them, when they could relate to those stories, it became something else for them. मतलब वो जो relationship बनी between us and the audience was so dynamic because it was a live presentation, और उस स्टोरी से उनको लग रहा था कि तो हमारी कहानी तो। और फिर एक दफा मुझे याद है, मैं आपको एग्जांपल दूं, एक सिंध के ही एक छोटे से गांव में, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं, जहाँ पे बहुत सारे लोग उर्दू जानते भी नहीं थे, तो वहाँ हमने एक प्ले किया था, यही औरत की कहानी एक तरह से। और वहाँ पे ये औरत जिसको who has gone through a life where she has worked in a factory and been exploited, her daughter has worked in an office where she's been exploited, आखिर में ये जब बूढ़ी हो गई है, ये उठती है, यूं करके ये उठती है symbolically, और यूं उठ के यूं खड़ी होती है, यूं करके वो ये करती है, just a symbolic gesture. And an old man in the audience got up with tears in his eyes and he said, ये तो मेरी बेटी की कहानी है। अगर ये औरत लड़की अपनी बंधने तोड़ सकती है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं घर जाके अपनी बेटी को बोलूँ कि तुम क्यों नहीं अपनी बंधन चेंज तोड़ सकती। So this is the magic of art for me, and this is why I do art. 5 minutes. Okay, just 5 minutes to read something and 5 minutes for question answer, if you don't mind. तो मैं जो चीज सुनाना चाहती हूँ वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक शायर थे, आप सब लोगों ने उनका नाम सुना होगा, चिलियन शायर पाब्लो नेरुदा उनका नाम था। उससे किसी ने पूछा कि भाई ये तुम क्या सियासत की बातें करते हो, तुम अपने मुल्क की खूबसूरती के बारे में क्यों नहीं लिखते? भाई इतने गजब के पहाड़ हैं इस मुल्क में, ऐसे इतने बड़े बड़े ये हैं, दरिया है वगैरह वगैरह, what are you talking about all the time? So his answer, and I will read that, ये 3 मिनट का, then 5 minutes for question answer. और इस नज़्म का, और ये नज़्म भी अंग्रेज in English, obviously it was written in Spanish, but the English the English translation of the title of the poem is "Come and See the Blood in My Streets." और ये मैं नज़म ले गई थी और मैं उसको मुझे बहुत पसंद थी और मैं अंग्रेजी में बार बार पढ़ती थी। मैं फहमीदा के पास, फहमीदा रियाज के पास गई और मैंने कहा कि फहमीदा ये नज़म मुझे उर्दू में चाहिए, I want to read it in Urdu। और उन्होंने वहीं बैठे बिठाए इसे उर्दू में मेरे लिए तर्जुमा करके दिया। उसका उन्वान ये रखा उन्होंने, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। अगर तुम ये पूछो कहाँ है चमनज़ार और रूह का वो जमाल,
ये पूछो कि बारिश कहाँ है, वो लफ्जों की रिमझिम झरोके परिंदे बनाती सजाती है जो शायरी को, तो मैं तुमको खबरें सुनाऊं। वाह वाह। मैं एक शहर के पास रहता था जिसमें शजर थे, एक छोटा सा शहर, वहां घंटियां थी। मेरे घर का था नाम फूलों का घर, क्योंकि इसमें बहुत फूल थे। गोशे गोशे में रक्सा, गुलाब और सोसन, बहुत खूबसूरत था वो घर। वहां खेलते तिफल बच्चों को कहते हैं, वहां बच्चे खेलते थे, उनके खिलौने तुम्हें याद है? तुम्हें तुम्हें भी मेरे साथ ही कुछ याद है? और उन सबको जो आज हैं ज़ेरे खाक, वहां शैनशीन पर उतरती थी किरणें, हमारे दहन में खिलाती थी फूल। मेरे दोस्त, मेरे साथी, बहुत सी सदाओं की झंकार थी वहां, नमक थी जो सौदे में लाई हुई सब्जियों में रवां थी, धड़कती हुई रोटियों की सदा, ढेर जिनके लगे थे मुज़ाफ़ात के गर्म बाजार जिनमें हसीन मूर्तियां थी, दुकानों की बुतात जैसे भंवर हो कोई मछलियों का, और पूंछों में लहरों की मानंद थे दस्तों का शहरियों के वो पैमाने फीस था, मछलियों के वो अंबार, छड़ों की उम्दा बनावट, वो ठंडी सी धूप और रंगीन तरकारियां जिनकी सुर्खी सफेदी लहर पर लहर बन के बहती हुई एक सागर की सा। और एक दिन वो सब नजरे आतिश हुआ, और एक दिन वो सब नजरे आतिश हुआ। एक शहर ऐसे धरती शोले उठे, खा गए इब्ने आदम को जो, और तब से यहाँ सिर्फ बारूद है, और तब से यहाँ सिर्फ बारूद है, सिर्फ आग, और तब से यहाँ बस लहू है, लहू। सियाहपोश हज़ार थे हमला आवर, जोर सेम से जिस्म जिनके मुज़य्यन, वो खूनी लुटेरे जिन्होंने मजहबों में पनाह ली हो, वो बच्चों को खाक और खून में लुटाते थे, वो बच्चों को खाक और खून में लुटाते हुए फिर रहे थे, और बच्चों का लहू शाहराहों पे दौड़ा फिरा, घुमकता हो। वो तो बच्चों का खून था। भेड़िए जिनसे नफरत करे, खारदार एक शाख जो किसी की गजा बिन बन सकी है ना बनने के काबिल है, ऐसे अजदर कि जिनसे कोई सांप हरगिज़ मुशाफिर नहीं। आज मैं रूबरू हूं तुम्हारे, आज मैं रूबरू हूं तुम्हारे, मैंने अपने शहर का खून देखा है, वो मौज खून जो तुम्हें गर्क कर देगी। ये मौज है उस तकब्बुर की और उस तलवार की जो फकत गर्क करती है इंसान को, जिसमें कोई नहीं बैठा। अपनी धरती से गद्दार सलार, देखो मेरा मुर्दा घर और शिकस्ता ये मुल्क, और देखो कि जलते घरों से पिघलती हुई घात बहती है, खिलते नहीं यहाँ गुलाब। और तुम पूछते हो कि इसकी शायरी में भला क्यों नहीं ख्वाब और
बर्ग सब्ज, क्यों नहीं था वो बर्ग सब्ज? कैसा शायर है ये, नगमा वहाँ क्यों नहीं ये वतन की जमीन का जो है बेहद वसीम। आओ आओ देखो मेरी शाहराहों पे फूल, आओ देखो ये फूल, आओ देखो मेरी शाहराएं, मेरी शाहराहों पे ये फूल, आओ देखो। वाह वाह वाह। This is art, and this is the magic of art. What it does to you, where it gets to you, now you know it. I don't have to put it in words, and I will end again on our very pyari dost Nida, and to all the female students here, and who I'm so happy to see that finally हमें लड़कियां दिख रही हैं, वरना दिखती नहीं है। और वो कहती है आप लोगों को कि अब तुमको हासिल करना है, अब तुमको हासिल करना है इस धरती पर इंसानी विकास। औरत और मर्द बराबर हैं और यकसां है हक जीने का। Thank you. Thank you. I would be happy if anyone wants to ask me anything. मेरा ताल्लुक एक छोटी सी तंजीम है, उसका नाम है तहरीक निस्मा। अगर आप लोग उसको गूगल कर ले, ये फेसबुक पे भी है, हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है जिसपे हम अपने परफॉर्मेंसेस, झलकियाँ वगैरह कुछ डालते हैं। I would be very happy and if you subscribe to the channel Tehreek-e-Niswan YouTube channel, Facebook वगैरह वगैरह। और बस और क्या कहूँ मैं कि मेरा मकसद as an artist is to tell the truth. We are never told the truth. History does not tell us the truth. Present moments we do not are told the truth. Palestine में क्या हो रहा है? We are not told the truth. बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? We are not told the truth. अपने सिंध में क्या हो रहा है? We are not told the truth. We have to search for that truth, and then we will be जिसे कहा जाए proper इंसान। Thanks. कोई अर्जेंट सवाल अगर किसी को है? जी जी। शिमा करमान में आपका बड़ा फैन रहा हूँ, आपका काम है वो बड़ा पाकिस्तान के लिए, उनके लिए और पाकिस्तान से बाहर भी माना जाता है। मैं आर्टिस्ट भी रहा हूँ और इसका नॉलेज है, टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट में तो आपने वर्ड का हिस्ट्री, इससे मैं थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, हिज स्टोरी आपने ये इंटरप्रेट इस तरह से किया है कि लगता है कि मर्दों की या मर्दों से रिलेटेड या मर्दों ने ही बना, हालांकि शायद इस तरह से नहीं। इस तरह से इंटरप्रेट करके हम एक जेंडर को दूसरे जेंडर के खिलाफ डिफरेंट एटीट्यूड पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह के इंटरप्रिटेशन ना करें तो शायद बेहतर। सही, पुरानी जो तारीख थी, समझ गई आपकी बात, पुरानी जो तारीख थी। एक सेकंड सर, I've understood your point. मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि हमारे यहाँ जो तारीख बयान की जाती थी वो कैसे की, वो बयान की जाती थी और वो ओरल ट्रेडिशन था, वही हमारे गीत थे, वही हमारी फोक स्टोरीज थी, वही हमारे लेजेंड थे। और वो जो नरेटर्स थे जो कथा बयान करते थे वो खुद भी डांसर्स थे, खुद भी म्यूजिशियंस थे, खुद भी सिंगर्स थे। सो दे वर द ट्रू आर्टिस्ट्स। सो that history was oral, it was not written.